initiative of Priceless Parenting that believes in appreciating, accepting, and celebrating uniqueness in each child and, of course, each parent. I would want to start with a Sanskrit shlok that will be very meaningful for today. Matra Pitra Kritabhyaso Gudita Meti Balkaha Na Garbhyuti Matren Putro Bhavati Pandita. This shlok means that the child taught by the parents, by the mother and father, becomes qualified. No child becomes learned by by the virtue of being born. So I think as parents, we all have a very important role in the development of children, and we always need to pause and reflect upon what contribution are we giving in the bringing up of our child. Vishnu, keep admitting it. Okay. So, I read a news yesterday, ma'am, this is very interesting. I read a news that Steven Spielberg, the filmmaker, his father passed away at the age of 103. But the most interesting thing that I found about that news was that all of his children, they had reported a statement. And that's a very, very beautiful statement. I would like to read it out for you. They said that our father taught us how to love to research, expand our mind, keep our feet on the ground, but reach for the stars and look up. I think this is such a beautiful, kind of a memory that children can have about their parents. And we all as parents should try and leave footprints of this kind in the hearts of our children. There's a research in 2010 by, Harvard psychologists Killingsworth and Daniel Gilbert. They conducted a study on many people to find out, how long our mind wanders. And they found out that whooping 47% of the time, we as human beings are wandering. Our thoughts, our minds are wandering. We are not concentrating on what we are doing. We are not attentive on the work that we are actually doing, but we are always wandering. And the other most important thing was that mind wandering was associated with unhappiness and happiness. The more we wander, the more unhappier we are. We are able to be happy only once we are concentrating on the work that we are doing. So it seems, these days, that is the reason that mindfulness has become so important. And everywhere you will see the benefits of mindfulness being talked about. It was started by, this practice was started by Jon Kabat-Zinn. He's the founder of Mindfulness and Stress Management Program. And what he says, I think when we talk about mindfulness, we are going to talk about all those things. So to share the insights on such a wonderful topic, we have a very eminent panelist with us today, Professor Dr. Chhavi Bhargav Sharma. Ma'am, welcome to this show. We are really honored to have you with us, to have, your insight being shared with all of us. I would like to read a short introduction about ma'am. Professor Chhavi Bhargav Sharma is the Executive Director and Dean, Faculty of Behavioral and Social Sciences and Liberal Arts, Manav Rachna International Institute of Research and Studies. She is the Trustee and Secretary of Dr. O.P. Bhalla Foundation, a community initiative of Manav Rachna Educational Institutes. Ma'am is a PhD in psychology. She's a psychologist and a mental health professional. She is a certified international career coach. She has a vast experience of approximately 29 years of being an academician and research experience, along with an experience of counseling and psychotherapy. She has authored several books and published many research papers. She has been awarded the Fellow of Peace 2004 by WISCOM. She is an edupreneur and has been involved in starting some 18 departments and programs, and is a part of the foundation and institution building team in the university. She is a co-founder of a startup, Conversationists Talking Cures, a mental initiative of Indic Center of Psychological Wellbeing and Holistic Health. I am so honored to welcome her here. And also another thing is that she is my mentor too. I am doing my research under her, and what an honor to host your mentor on the show. I'm really obliged, ma'am. It's a wonderful day to have you here. Thank you so much, Vinita. You kind of, itna zyada aapne
बोला है कि आई एम गेटिंग काइंड ऑफ फीलिंग कि अरे अब तो नर्वसनेस ही होनी चाहिए. Others can show you कि आप कितना कुछ कर रहे हो, अपने आप को रियलाइज नहीं होता कि हम लाइफ में कितना कुछ कर रहे हैं. Thank you so much for the kind words, and it's a privilege to be on this show. और parenting पे है इसलिए I hope I can. There are so many students I see here, so I hope हम लोग students के लिए it becomes a little relevant also. Yeah. But we're talking about parenting, and this is a very important topic, especially mindfulness and mindful parenting. Ma'am, so to start with it, I think we'll conduct a poll so that the parents are on the same page as we are and we understand where they are. So parents, we are going to conduct a poll. You just have to click the options. I will put it there only for less than a minute and you have to respond. So the poll is here. The question is, are you bringing up your children the way you were brought up? I think it will really help us to navigate the further discussion so that we know your mindset, what is in your mind. Because definitely as parents, we have been juggling through different roles and responsibilities. The scenarios have been changing so fast. And I mean, some people are following the traditional methods of parenting, some are not. Also, till the time the poll is there, I would like to share a wonderful, WhatsApp message that was few days back there, that traditional, tools of behavior management used by the parents. There was a balan, there was a belt, there was a pipe, there was a jhadu, and there was a chappal. And I think most of us have been trained with those kind of tools in our times, but they are not applicable and not influential in today's world. So I think we have only 60% have voted by now. Just another, few seconds and I'm going to close the poll. Ma'am, submitted. Beta, please keep yourself on mute. So let us end the poll now. 64% have voted. So 17% people say, 19 now, that yes, they have been bringing up their children as they were brought up. 24% say yeah, no, and 57% people say in some ways. So I'm going to end the poll here and then so I think, ma'am, actually, the poll says that people are confused. I think they really do not know what kind of parenting style is more effective in today's time. Some of them are following the traditional method, some are not. So I would like to ask you that how do you think that parenting has changed or evolved, has, come up after so many years or within so many years? What is the change basically? Yeah. Actually, Vinita, I'd like to talk about mindful parenting because it is a concept. Mindfulness is a very old concept. And when we talk of mindful parenting, the reason why we follow what we've been taught or we are confused and we are not really able to talk about all this is because दो चीजें हैं इसमें, है ना? अगर हमें mindful parenting की बात करनी है, parenting over the years has changed. And it is basically parenting in itself is a concept which is a new concept in many ways. क्योंकि पहले it was mothering, and then if you look at, I can go back to history and our scriptures. Right from there, it was guru was important, and then it was mothering till it became, then the father came in, and now it is parenting. But parenting, and we have not really focused. There have been various theories, and today when you said mindful parenting, so I thought we must begin with what is mindful. Yeah. Mindful parenting, we will leave behind everything else where it was taught, like the behaviorist said that, you give me a child and I will make him I will make him a theater person, I'll make him a writer, I will make him a robber. So जब हम parenting की बात करते हैं ना, इसमें दो चीजें होती हैं. एक, what is the concept of the child? और अभी तक जो problem रही है, क्योंकि हमारा concept of the child, that is where we miss out. और जितनी भी workshops में, when there are problems, हमें ये देखना है कि हम कहाँ से आ रहे हैं अभी तक. So I will answer your question, but in a little different way. Sure. अभी तक जो भी ideas हमारे पास थे child के बारे में, child का एक था कि वो blank slate है ना?
अगर ब्लैंक स्लेट है तो दैट मीन्स एक इग्नोरेंट छोटा सा बीइंग है जिसे हमने ट्यूटर करना है, जिसमें हमने चीजें डालनी है. दूसरा मेजर व्यू ऑफ अ चाइल्ड इज ही इज अ मिनिएचर एडल्ट, तो हमें उसे एडल्ट वर्ल्ड के लिए तैयार करना है. और इसीलिए इतने सारे डिसिप्लिनिंग वेज, इतनी सारी चीजें हैं. और आपको पता है देयर आर सो, आउट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एटलीस्ट 30% आर चिल्ड्रन, एंड वी आर नॉट, हमने चिल्ड्रन को एज अ अलग आइडेंटिटी आज तक देखा ही नहीं है. वी हैव नॉट इवन गिवन देम दैट इम्पोर्टेंस कि द चाइल्ड इज अ सेपरेट एंटिटी. And that is why I will go to Aurobindo and mother, and from there I'm drawing a few. I have because their parenting style is mindfulness. And this is where they say, because what happens is हम blindly, क्योंकि हमको लगता है कि the child does not know anything और ये हमारी ड्यूटी है. और आज तक if you see all the parenting styles and everybody जो भी कर रहे हैं, it's including, I have also brought up my child. If I had known this, it would have been different, but we've all brought up our children according to certain theories कि उनको नहीं पता है हमें दुनिया की चीजें दिखानी. उनको हमने कभी उनको समझा ही नहीं है, and we have not even understood what the child actually is. And जब तक, and by the time the child is 6, 7, 8, हमने उसको पूरा, we without understanding we have उनको मोल्ड कर दिया है into an adult way of life. पूरा मीडिया से लेके क्या चीजें यूज करनी है क्या नहीं, हर चीज. कभी हमने चाइल्ड को एज अ चाइल्ड ही नहीं देखा. तो ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट जो है विच इज द बेसिस ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग. कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो भी चीज कर रहे हैं वो हम किस तरह कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है. एक कोटेशन में बोलूंगी कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक इंश्योर, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने चाइल्ड को हैप्पी करने में, we are trying to make a child happy. Yeah. Instead of that, we need to let him be happy. And there is a difference. Yeah. And we have to make that shift. And the second thing we have to question is, what do I see myself as a parent? Okay? दो चीजें. Okay? What is my opinion or what is my belief about the child, and what is my belief about parenting? As a parent, what am I supposed to be? और ये दो, if we start looking at this, then you will get a whole picture. So if I think the child is supposed to be taught, फिर मैं कहूँगी डिसिप्लिन मतलब उसको हमें सिखाना है. अब जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के साथ, या पेरेंट्स कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं है, तो कॉन्सेप्ट तो हमारा है कि हमें लगता है कि बच्चे को पढ़ना चाहिए बच्चा. एंड वहाँ पे अंडरलाइन, मैं ये नहीं कह रही हर चीज कॉन्शियस होती है, हम सोचते हैं. इट इज एम्बेडेड इन आवर सबकॉन्शियस, in our unconscious. और जो चीज, इसीलिए we have to unlearn a lot of things. तो अगर हम बच्चे को मारते हैं तो इसका मतलब हम इनहेरेंट हम ये है समझते हैं कि बच्चा इविल है, या बच्चा जानता नहीं है, वो शैतानी की तरफ ही जाएगा, वो हर चीज इन डिसिप्लिन की तरफ जाएगा. तो मेरा जॉब है टू डिसिप्लिन, एंड इट्स दैट इज वेयर वी स्टॉप. एंड all the other parenting styles you have, laissez-faire and dominant, and वो सब become immaterial, because mindful parenting is a different level of parenting, और it is a responsible parenting. helicopter, ये बहुत सारी चीजें आई हैं, but that doesn't matter, those are all external oriented. this kind of parenting, क्योंकि आपने मुझे टॉपिक ही mindful parenting का दिया था, तो I want to go, and I thought, मैंने बहुत सोचा कि हम किस तरह इसको सिंप्लीफाई करके. तो इट इज टू थिंग्स. आपको ये देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट अबाउट द चाइल्ड क्या है, और आपका कॉन्सेप्ट अबाउट यू एज अ पेरेंट क्या है. डू यू फील एज अ पेरेंट यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन. और जब हम एज अ पेरेंट क्वेश्चन करते हैं तो हमारी पेरेंटिंग बिकम सिंपल. हमारा कैसे हम लोग बड़े हुए हैं, आवर पेरेंट्स प्ले अ रोल, एंड मेनी ऑफ द टाइम्स वी जस्ट कॉपी आवर पेरेंट्स बिकॉज वो अनकॉन्शियसली इन्वाइट है. जी. So coming to the next thing, अब आप अगर लोग ये पूछेंगे कि ओके ये सब तो ठीक है, लेकिन बच्चे को हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी देंगे तो वो उसमें डिफरेंस क्या है और एडल्ट में डिफरेंस क्या है. ये क्वेश्चन तो नेचुरली आएगा, बट इससे पहले विनीता, इफ आई डोंट वांट इट टू बी अ मोनोलॉग, आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए. मैम, मैंने भी कहीं पे पढ़ा था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुली सेड दैट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट वी हैव टू make the child realize that the child exists.
कि उसकी प्रेजेंस है, वो चाइल्ड है, हमें उसकी एग्जिस्टेंस को बहुत ज्यादा मान्यता देनी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड नीड्स दैट काइंड ऑफ अटेंशन एंड उसकी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखना बहुत जरूरी है. We Yes. most of the times, you know, because of our preconceived notions, our experiences, our childhood experiences, हम बच्चे में अपनी aspirations देखते हैं, वो हमें छोड़ के हमें actually we have to be there. And एक बहुत अच्छी चीज मैंने मैम गॉटमैन इंस्टीट्यूट से सीखी थी, that हमें जो बच्चे experience करें अपने emotions, उसको validate करना बहुत जरूरी है. उसको जो बच्चे को एक्सपीरियंस करने दो, जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है. कि अलग अलग कई लोग बिल्कुल रोक देते हैं बच्चे को, नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव इमोशन पे शिफ्ट कर देते हैं. दे डोंट लेट द चाइल्ड प्रोसेस दैट इमोशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट कि हम उसको प्रोसेस करने दें, उसको वैलिडेट करें, उसको नेम करें कि दिस इज द इमोशन यू आर फेसिंग, एंड उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं कि अगर ये इमोशन है, इसको प्रोसेस करके आप कैसे, हाउ विल यू कम आउट, हाउ विल यू डील विद दिस इमोशन. सो दैट इज समथिंग दैट वी लैक बिहाइंड. बट इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जनरली यू नो हम माइंडफुल पेरेंटिंग की तो बात कर रहे हैं, बट माइंडफुल पेरेंटिंग अगर मैं एज अ टर्म बोलूं तो बिल्कुल लेमैन के लिए हम क्या बोलेंगे कि माइंडफुल पेरेंटिंग को हम एक्सप्लेन, व्हाट इज माइंडफुल, व्हाट इज Okay. माइंडफुल. यही मैंने करा था जी कि माइंडफुल पेरेंटिंग मीन्स आप जो भी आप करना चाहते हो उससे पहले आप सोचो कि इट मीन्स स्टॉपिंग एंड थिंकिंग एंड रीइवैल्यूएटिंग कि मैं एज अ पेरेंट मेरा क्या कॉन्सेप्ट है ऑफ पेरेंटिंग, मैं क्या सोचती हूँ पेरेंटिंग के बारे में, और मैं चाइल्ड के बारे में क्या सोचती हूँ. यही जो प्री कंसीव नोशंस है ना हमारे, कि डू आई थिंक कि बच्चे को कुछ नहीं पता है. और दूसरी चीज ये है कि देखिए इस तरह से हम ले सकते, आप ये कभी हम आपकी शादी होती है, डू यू थिंक हम 2 बार सोचते हैं कि मुझे अपने हस्बैंड को वैलिडेट करना है, या हस्बैंड सोचता है वाइफ का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है. वी नो वी आर टू इंडिविजुअल बीइंग्स. तो चाइल्ड को भी एज एन इंडिविजुअल बीइंग आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चाइल्ड, और देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड द एडल्ट. एक जो बच्चा है और वो शुरू से ही वो हर चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि एज पेरेंट्स वी मस्ट रिमेम्बर कि बच्चे का फ्यूचर डिपेंड्स ऑन अस. वो कैसे चीजें महसूस करेगा, कैसे दुनिया को देखेगा, कैसे अपनी चीजों से को हैंडल करेगा, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है. और इसीलिए हाउ वी डील विद इट, दैट डजंट मीन कि एज पेरेंट्स हमारे भी मूड्स होते हैं ये, लेकिन हाउ वी डील विद एंड व्हाट इज इट दैट वी कम्युनिकेट. एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन द चाइल्ड एंड योरसेल्फ और एन एडल्ट. द चाइल्ड, जो चिल्ड्रन का वर्ल्ड है वो वर्ल्ड ऑफ इमोशंस है. वो उसके पास थॉट्स नहीं है बट फीलिंग्स हैं. ही फील्स थिंग्स एंड ही इज ऑलवेज इन द मोमेंट. वो प्रेजेंट में जीता है. तो अगर जब हम स्पेशली 2-3 ईयर ओल्ड को कहते हैं कल भी तुमने ये करा था, गंदे बच्चे कल भी लेके आए, 4-5 साल के बच्चे को हम डांटते हैं कि तुमको मना करा था ना ये करने को, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका पास्ट में वो नहीं जीता है. जो ये पास्ट और फ्यूचर का जो चीजें होती हैं, ये एक एडल्ट कॉन्सेप्ट है. एज एन एडल्ट आप खाली थॉट्स में जीते हो, आपके लिए थॉट्स इंपॉर्टेंट है. मैंने जब ये बोल दिया कॉग्निटिव, उसके लिए इमोशनल, और ये हमें किसी ने सिखाया नहीं, एंड वी शुड हैव बीन टॉट. सो बच्चे के लिए, सो व्हेन यू आर डीलिंग विद द चाइल्ड, वी आर डीलिंग, इट्स ऑलरेडी 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स. आप इमोशंस को कॉग्निशन से जोड़ रहे हैं, मतलब थॉट से. तो व्हेन यू हैव टू डील विद द चाइल्ड, यू हैव टू थिंक कि आपको उसके साथ फील करना है, एंड you have to जो आपने कहा validate the emotion, that is why you have to validate. Mindful parenting means whatever you do, you think it through and do it. कुछ भी चीज blindly नहीं follow करते, we just reason with ourselves और देखते हैं कि उसमें कहीं pre-cognitive, मेरा pre-conceived bias तो नहीं है, क्या मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सब कर रहे हैं, क्या मैं हॉर्लिक्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि, और उसमें चाइल्ड कहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या इज इट अ जॉइंट डिसीजन. अगर नहीं भी बोल सकता है तो उसका इमोशंस और हर चीज को पेरेंट्स जस्ट नो. सो व्हाट एवर यू डू यू थिंक इट फ्रॉम द चाइल्ड और फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, यू नो, एंड हाउ यू वैलिडेट द इमोशंस. सो आई थिंक this is in simple words what it is. मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि जैसे
बच्चे आपने बोला कि प्रेजेंट में रहते हैं, हाँ. एक्चुअली जैसे सपोज वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, विद अ पेरेंट इज वॉकिंग ऑन द रोड विद द चाइल्ड, और बच्चा बिल्कुल ही खो गया, कोई बटरफ्लाई उड़ रही है उसी को देख के खो गया, ही इज सो इंटरेस्टेड इन दैट, बट द पेरेंट वुड जनरली व्हाट हैपेंस इज पेरेंट हाथ पकड़ के खींच लेगा कि चलो 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 ना, हरी, बिकॉज वी आर इन अ रश, we don't take a pause to actually appreciate what the child is appreciating. तो Exactly. क्या उसको भी माइंडफुलनेस करेंगे, कहेंगे कि आप रुक के उसके साथ वो चीज अप्रिशिएट करो? Yes, exactly. देखो, क्योंकि हम विचारों की दुनिया में जीते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, इंटेलेक्ट, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्ट, एंड वी थिंक के बहुत टाइम पहले तो हॉबीज, बीच में तो हॉबीज को भी टाइम वेस्ट माना गया था, एंड देन यू रियलाइज कि इमोशंस, सी बिकॉज एज एडल्ट्स हमने जिस तरह सोशलाइजेशन हुई है हमारी, कि वी हैव नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस टू इमोशंस, और यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा इमोशनल बीइंग है, सो यू हैव टू, बिकॉज इफ यू कनेक्ट विद देम, इट्स अ डिफरेंट, थॉट्स डोंट गिव यू दिस, बट इमोशंस डू. एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली. और बल्कि मैम एक रिसर्च हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट में, जहाँ पे वो कहते हैं पेरेंट्स जो माइंडफुल पेरेंटिंग करते हैं उनके बच्चे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन मोर पॉजिटिव बिहेवियर्स दैन नेगेटिव बिहेवियर्स, और बल्कि वो लिंक्ड भी है कि बच्चे भी करते हैं और पेरेंट्स भी करते हैं, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीजें उस फैमिली से ही आउट हो जाती हैं. सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड. एब्सोल्युटली. विनीता देखो, पेरेंटिंग जो है ना, वो मैन इन द मिरर से शुरू होती है. जी. इट बिगिंस विद यू व्हेन यू लुक, व्हाट इट मींस इज पेरेंटिंग आपसे ही शुरू होती है, और जितना हम अवेयर होंगे उतना ही हमारे लिए इजी रहेगा. दैट डज नॉट मीन कि यू हैव टू बी परफेक्ट. It just means you communicate to the child. When you are angry, you can tell the child, you tell the child that why you behaved in a certain way. बट जनरली मैम होता ही है कि हम रिएक्ट कर देते हैं, बट वो हम अपना इमोशन को डिस्क्राइब नहीं करते कि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं. वी जस्ट आर कंसेप्ट टू जस्ट ट्रिगर ऑफ. एक मैंने चीज सुनी थी, जस्ट कंट्रोल योर लिड, डोंट लेट योर लिड गो अवे. तो हम वो लिड ऑफ फटाफट कर देते हैं, वी डोंट थिंक विद दैट लिड ऑन. सो आई थिंक वी हैव टू रियली पॉज, थिंक, सी अराउंड एंड देन रिएक्ट. Also another thing is कि हम दूसरों के सामने वो lid off नहीं करते. When you go to office, you don't do that lid off, but you do it on a child. Yes. Because somewhere the child is helpless, and somewhere we have to be. अभी जब हम देख रहे हैं तो शीशा तो देखना ही पड़ेगा. तो हम अगर हमारे ऑफिस में हम जाते हैं या वर्क प्लेस में, तो हमारा lid off नहीं होता. और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद सोचिए. आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि आप खुद सोचिए कि अगर आप गलती करते हैं और कोई ऑफिस में या कुछ सभी करते हैं, और कोई आपको कंटिन्यूसली आपके ऊपर डांटता है, एज टीचर्स भी हम यही करते हैं, कोई कंटिन्यूसली आपको डांटता है या मारता है, तो आप काम ही नहीं कर पाओ. माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब ये है कि वी सी आवरसेल्व्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग, एंड it's a very not complicated at all. थोड़ा सा बस एक पर्सपेक्टिव का शिफ्ट है. इट्स जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम, आपके जो क्लासेस है ना वो चेंज करने जरूर, बस वही चेंज करने पड़े. बिल्कुल मैम. लेकिन नाउ अ डेज आई सीन, क्योंकि पेरेंट्स इतना अपनी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, they are, I mean, in a rush all the time, भागा दौड़ी, and obviously so many stressors. पहले की तरह जॉइंट फैमिलीज नहीं है, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो ऐसे में कई बार मैंने देखा है व्हेन चाइल्ड डज समथिंग, इवन स्मॉल स्लाइटेस्ट थिंग, कुछ भी करता है या कुछ भी बोलता है, पेरेंट्स स्टार्ट शाउटिंग और नैगिंग देम ऑलवेज. ऐसे में माइंडफुलनेस कैसे हेल्प करेगी? देखिए, ऐसे में जो पेरेंट एकदम इंपल्सिव हो रहा है, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करेगा? दैट मींस द पेरेंट हैज टू लर्न हाउ टू बी माइंडफुल. पेरेंट को जरूरी है कि ही और शी सिट्स डाउन, या थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ पेरेंट के लिए थेरेपी यहाँ पे ज्यादा जरूरी है. बिकॉज आप देखिए ना, यू आर द फ्यूचर. एक फ्यूचर आप किस तरह, हमें ये भी देखना है ना कि सी वी आर ऑल रिफ्लेक्शंस ऑफ हाउ पीपल डील विद अस. अगर हमारे आप चिल्ड्रन, आप तो डील ही करती हैं इतना सारा. विनीता, आपको पता है कि अगर घर में बहुत वायलेंस है तो बच्चा भी वायलेंट ही होगा, या बच्चा बहुत क्वाइट हो जाएगा. आपको लगता है अगर आप बच्चे को, हम जब चिल्लाते हैं या बहुत चीजें बोलते हैं, तो इसमें बच्चा हमें प्यार करना नहीं छोड़ता है, बच्चा अपने आप से प्यार करना छोड़ देता है. और हमारा एज पेरेंट्स व्हाट इज आवर ड्यूटी,
we just have to look at we have to ensure उनका बच्चे का emotional, physical, mental health, ये तो हमारे लिए, और emotional health तो बहुत important है. Emotional warmth, love, affection, conducive and safe environment which provides opportunities to the child, and उनका social and emotional and ethics उनके में ethics to be and to live their life meaningfully. तो मैम प्रैक्टिकली आप क्या टिप दोगे, क्या सजेस्ट करोगे कि सपोज एक पेरेंट को एकदम गुस्सा आ गया, बच्चा कुछ कर रहा है एंड द पेरेंट इज फ्यूरियस, उस समय पेरेंट को प्रैक्टिकली क्या चीज एकदम से करनी चाहिए उस सिचुएशन? पेरेंट को टाइम आउट लेना चाहिए. एब्सोल्युटली मैम, दैट इज अ गुड वन. Parents should, when you are angry, you need to take time out. Distract yourself and then come. I need to clap for this because we have been giving this to children. Nobody said give it to parents. That's a wonderful thing. Yes. See, I'm not, it's आज जो ये बात हो रही है, तो I'm also a parent. Yeah. And I think today, it's many ways I'm trying to tell myself also that many things, because you mess up somebody's life and then that's not part and parcel. Because today the problems in the world is because if we teach our children well, if you teach compassion, the world में पूरी compassion होगी ना. As parents हम future को ready करते हैं, and that is why it is important. वो कुछ आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है. वो मैम उनका bandwidth में problem है. Okay. So this is why we need to look at things. और अगर कभी गुस्सा आ रहा है and we know office का है ये है and the child is coming, you can always, the child will understand if you tell the child, okay, mummy is in a bad mood today, if you're coming, जो भी आएगा उसको डांट पड़ेगी. So the child knows you can, and the child से बड़ा de-stressor कोई भी नहीं. If you sync with the child. Yeah, you have to tune it to the child. Absolutely. और मैम कई बार मतलब जैसे आप अभी बोल रहे थे that parents most of the time are displacing their anger. किसी और का गुस्सा वो घर पे बच्चों पे निकलता है, ज्यादातर ये होता है. बट यस, प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने ये देखा है, समटाइम्स एट आवर होम आल्सो, वेयरएवर, इफ आई टेल माय चिल्ड्रन, सी जैसे आपने अभी कहा कि टुडे पापा हैड सम स्ट्रेसर, सम ट्रिगर इन द ऑफिस, सो बी क्वाइट, मतलब टॉलरेट व्हाटएवर ही इज सेइंग, जस्ट इग्नोर फॉर सम टाइम, एंड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, they know because we all already have conditioned them. So it is very important to have that open communication. That channel of communication should not be blocked. हम मुझे लगता है स्ट्रेस ही नहीं करते सब कुछ बच्चों के साथ. Exactly. See, you have to tell the child, and you must remember कि अगर हम एक जना इमोशंस का कटोरा है और एक जना थॉट्स का कटोरा है, तो कहीं तो हमें मिक्स करना पड़ेगा ना. दोनों चीजें जरूरी है. तो आपको अपना सिखाना है, लेकिन उसको भी अगर हम एक it's not that difficult, because what happens is it's just unconditional love, unconditional acceptance, unconditional respect, and unconditional honesty. Absolutely. You have to be honest with the child, because the child does not go by your words. All of us go by the body. What you do, the child learns from what you do. He is geared, evolutionary, every life form understands दूसरा body language. So it's unconsciously you understand. So no matter आप क्या words बोलते हैं, you hit a child and you say, I did it because I love you. The act and your words don't match. और child आपकी body को समझेगा, क्योंकि हम सब we come from the same thing. आप एक अगर घर में आप dog भी रखेंगे, तो आप डॉग को कितना ही बोलो come here, वो नहीं होता है. He understands what you say unconsciously. आपकी eyes, everybody can feel, and human beings are, we are very, and आपकी smell, आपकी sight, आपकी body close होती है, वो होती है. There are even studies, lot of studies on evolutionary and biological, socio-biological studies which say smell, the infant knows the smell. Yeah. कितनी चीजें. मैम ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि मदर्स, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत, आजकल तो खैर बच्चे कम पीटते हैं, बट जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि मदर गुस्से में आके पीट तो देती है बच्चे को, लेकिन बाद में मदर ही रो रही होती है, शी से सॉरी, शी क्राइज इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड कि हो गया, और बच्चे को मार के कभी मदर्स खुद को मारती हैं या कभी खुद पे बहुत ज्यादा रोती हैं. ऐसे में आपको क्या लगता है मदर को क्या करना चाहिए?
ऐसे में ना एंगर मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। और अगर आपने कर दिया है तो गिल्ट पे भी मत जाओ, एज लॉन्ग एज यू टेल द चाइल्ड, टेल हिम यूर सॉरी जेन्युइनली। यू नो, देखो बच्चा समझता है, अगर आप जेन्युइनली सॉरी हो तो वो समझ जाएगा। हम सब, एंड इट इज अ वन टाइम थिंग। लेकिन अगर रोज ही हो और रोज ही सॉरी है तो इट बिकम्स अ पैटर्न, फिर ये इमोशनल अब्यूज हो जाता है। और अब्यूज खाली मार पिटाई से नहीं होता है, वर्ड से भी होता है। सबसे डेंजरस जो हम चीज करते हैं वो है डबल बाइंड। अगर आप अगर आप बेथलेहेम की पढ़े सारी थियोरीज या कुछ भी, तो जो डबल बाइंड भी हम करते हैं ना, वो भी वो बच्चे को तोड़ देता है। और अगेन आई विल रिपीट कि जब हम कुछ ऐसी चीज करते हैं, यू नो, व्हेन यू से समथिंग जिससे बच्चा विल नेवर स्टॉप लविंग। पूरा माय मदर माय सेल्फ पे ही पूरी स्टोरी टिकी हुई है, बट द चाइल्ड विल स्टॉप लविंग himself herself, and that is why. And you know, even if you think about it, it's not, parenting is very tough. It's not an easy job. It's not even a job. It's, you know, because जैसे हम कहते हैं कि 3 miracles ही मानते हैं, and the 3 miracles are all related to birth. The first is giving birth, and the second is giving birth, and the third is giving birth. Wow. And the moment you give birth, you Yeah. become something else. Yeah. And that's the miracle of life. Yeah, yeah, absolutely, ma'am. That was really beautifully said. And वही ma'am, parents have to understand that parent तो by virtue of giving birth वो बन ही जाते हैं उस समय, but उसके बाद की जर्नी जो है वो पेरेंटिंग है। पेरेंट तो आप बन चुके, आप रोज रोज पेरेंट नहीं बनते। वही the moment you give birth, you are a different person. But उसके बाद how you take up that responsibility, how you actually do the parenting, that is what matters. मैम एक पोल और कर ले पेरेंट्स को थोड़ा सा एंगेज करने के लिए। लेट अस Absolutely. do another poll. So parents, I'm going to launch another poll. So would request you all to fill it up as soon as fastest finger first जैसे करते हैं ना, ऐसे मैं चाहती हूँ आप लोग करें. So the poll is here and it says, are there any behavioral changes in your children post COVID? In fact, ma'am, I was reading about some studies कि post COVID बच्चे ही नहीं बड़ों के ऊपर भी कितनी studies हो गए, that there have been behavioral changes in the adults. There have been so many issues that have come up because of, you know, the COVID stress. Absolutely. It has really impacted. Yeah, it has, and it's ऐसा कह रहे हैं कि COVID, after COVID, the biggest pandemic is going to be mental health. Yeah. It's a very difficult phase, और बहुत सारे calls भी आ रहे हैं, बच्चों के भी हैं। बहुत difficult है क्योंकि हम, it is bringing to the forefront हमने क्या, everything about us, our values, our system of parenting या rearing the children. पहले तो सब चीजें सामने आ गई। पहले parenting used to be a community thing. बहुत पहले in indigenous या pagan cultures like ours, it used to be a community thing. It was never a community raises a child. Absolutely, ma'am. Absolutely. So then let us end the poll. 59% have voted and 73% say that yes, there have been behavioral changes. 20% say no and 8% say maybe. So I think the majority of people say that they have seen behavioral changes in their children post COVID. So ma'am, इसमें मैं पूछना चाहती हूँ, generally, you know, with the cases that come to me, that I have seen that most of the children, especially in the teenage section, टीनेज क्या बच्चों में भी ये हो रहा है, बहुत इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, बहुत एग्रेशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में माइंडफुलनेस कैसे हेल्प करेगी, कैसे उनका एंगर हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग माइंड? Children, I'll talk, adolescence is they are a different species actually. क्योंकि उस टाइम we all know हार्मोन्स कितने ज्यादा एक्टिवेटेड हैं, और उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आइडेंटिटी भी, हम लोग, द ह्यूमन रेस is a social, we are social animals because we need others for us identity for everything. अब अगर आप बच्चे की बात करेंगे, प्री एडोलेसेंट, उनको एक्टिविटी नहीं हो रही, देयर इज एनर्जी and they don't know how to utilize that. You know, there is no play, you are bound.
तो इतनी सारी चीजें, और आपको हम खाली अगर बिठा दें, क्योंकि क्लासेस भी चल रही हैं और पेरेंट्स बहुत प्रेशर भी डाल रहे हैं कि क्लासेस अटेंड करो, फिर इतना सारा होमवर्क है, फिर नेक्स्ट डे उठना पड़ता है। और ये जो सिस्टम है ऑफ ऑडियो विजुअल, इट स्ट्रेन्स द माइंड, क्योंकि द ब्रेन इज नॉट यूज्ड टू ओनली दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन। तो नेचुरली जब एनर्जी इतनी अंदर रहेगी तो वो इरिटेबली तो रहेगी। सिमिलरली पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर। फॉर टीनेजर्स इट्स डबल, बिकॉज पेरेंट्स हैं, अब टीनेजर्स का अपना आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, उनको पीयर ग्रुप से बातें करनी है। अगर वो फोन पे हैं तो पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ये नहीं कर रहे, पूरे दिन आप फोन पे हो, आप टॉक्सिसिटी है, आप लैपटॉप तभी देंगे जब क्लासेस हैं, फिर लैपटॉप हटा लो, गैजेट्स हटा लो। देखिए, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट शुड, बट वी टॉक अबाउट पॉजिटिव री एक्सचेंज करें, सिंपल अदर टेक्निक्स, क्योंकि अगर हम फियर से करते हैं तो वो फिर, क्योंकि जनरली हमने डिसिप्लिन फियर से करा है, तो वो टूट रहा है अब, एंड रिबेलियन हो रही है घर पे, या बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है। इट इज भी उतनी ही जगह है, एंड वी नीड टू थिंक हाउ वी आर गोइंग टू, व्हाट इज द वे आउट, एंड दैट हैज टू बी बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड। इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप लोग, क्योंकि एज पेरेंट्स हम बाहर भी वर्क करते हैं, घर में भी हमें पता है, हमने नेगोशिएट करा है, इन लॉज के साथ करा है, इसके साथ, तो चाइल्ड को treat him as an individual or treat her as an individual and talk, communicate, discuss, make rules, organize, क्योंकि rules तो चाहिए, you have to have certain rules, क्योंकि हम सब follow करते हैं। Unconditional love and acceptance also means teaching responsibility and teaching and learning discipline. तो दोनों को ही teach and learn करना। किसी का हाथ आया है, somebody has asked a question. मैम क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में ले लेते हैं, है ना? ठीक है, फ्लो हमारा खराब हो जाएगा नहीं तो। yes, तो मैम absolutely, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, और उसमें मुझे लगता है एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड ऑन इज that parent has to accept that this is the future, it is the new normal. ये हमारे वाला टाइम नहीं है, because we are used to friends, meeting with friends, going out, socializing. इन बच्चों के लिए socializing आजकल यही है, इनके लिए कनेक्ट यही है। एंड समटाइम्स इवन एज अ पेरेंट आई यूज्ड टू वरी कि ये क्या हर समय बच्चे लैपटॉप पे रहते हैं, बट देन सडनली आई आल्सो रियलाइज स्लोली कि इनकी इंटेलिजेंस जो है उसी में निकल के आ रही है। It is absolutely, because their system has changed and we need to catch pace with them rather than bringing them down to us. Exactly. विनीता, जब भी लोग भी आते हैं ना फॉर करियर काउंसलिंग, आई ऑलवेज से कि आपको डिसाइड करना है, आपको बच्चे को फ्यूचर के लिए रेडी करना है, पास के लिए नहीं कि आप यही सब्जेक्ट लो, वो ये नहीं कर रहा। और दूसरी ये है कि रूम ये सब है, दिस इज द ओनली वे दे आर कनेक्टिंग एंड इट इज नेसेसरी स्पेशली फॉर ऑल द चिल्ड्रन, क्योंकि उनका पीयर validation is most important, especially when you're an adolescent, when you're a teenager. Peer validation, peer acceptance. अब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स, अच्छा एक ग्रुप में है, सबने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। अब आपको, अगर एक बच्चा आपका 11th में आ गया है तो उसको आप इतना ट्रस्ट करिए, आपको अपनी पेरेंटिंग पे भी ट्रस्ट होना चाहिए और बच्चे को करने दीजिए। अगर वो 2 दिन क्लास नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट ही इज लर्निंग। एंड दूसरी चीज, इस एज में बच्चे को अपनी जो है ना इमेज का ज्यादा, हमसे कहीं ज्यादा कॉन्शियस है वो अपनी इमेज को लेकर। तो ही और शी इफ ही इज बीन अ टॉपर एंड अभी नहीं कर रहा है, थोड़ा वो हो रहा है कि क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा, लीव इट, उसको अपनी इमेज का बहुत है, वो इवेंचुअली एवरीबडी विल फॉल इन लाइन। दिस इज अ न्यू नॉर्म एंड दे आर टेकिंग टाइम, एंड उनको दे नीड टू टॉक टू ईच, and I agree we should give that space. थोड़ा टाइम उनको दे के चिल कर लें, पार्टी कर रहे हैं ऑनलाइन पार्टी कर लें, जो भी करना है, बट गिव दैट स्पेस। सबको मी टाइम चाहिए, सबको फ्री टाइम भी चाहिए, पर मी टाइम चाहिए सब। It is very essential. And ma'am, nowadays I've seen a trend that children, they watch shows and movies together virtually. कि वो हाँ एक ने ऑन कर लिया, हाँ एक ने, because they need to connect with their peer group. And this is maybe their kind of connection, their kind of socializing. हम साथ बैठ के देखते थे, हम मिल के देखते थे, वो लोग ऐसे देख रहे हैं। And somehow I somewhere feel ma'am that it had to happen in future, but because of COVID everything has been preponed. हमारे पास जल्दी आ गई ये चीज, ये होना था,
but ये जल्दी आ गया, and good that we have been so adaptable. We are all changing and we are all trying to catch up with this. तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ है कि हम फोर्स ट्रेनिंग हो गई है हम लोगों की इसमें. Absolutely. And social media आपको ज्ञान भी तो इतना देता है, negotiate करो ना. ठीक है, if you are watching whatever you want, you are playing a game for 1 hour you'll do what I want. ठीक है, start. Deals बनाए ना. या कंस्ट्रक्टिव वे में भी तो चीजें हो सकती हैं. There's so much to learn. बहुत मतलब इनफैक्ट हम सीख रहे हैं बच्चों से कितना कुछ, बिकॉज हम जैसे बोलते हैं कि बच्चे जो है आजकल के वो डिजिटल नेटिव्स हैं और हम इमिग्रेंट्स हैं. एक्चुअली दैट्स द फैक्ट. कितनी चीजें वी हैव टू सीक हेल्प फ्रॉम देम कि ये हमें बता दो, ऐसे कर दो, एंड दे आर सो प्रो एंड सो फास्ट एट इट. Absolutely. देखो कितना they are so good in tech and they are geared for the future. They are born for the future ना. वो तो future है. They are picking up more than us. Absolutely, absolutely. मैम ये जो हम माइंडफुल पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली जैसे हमने बात करी भी कि 2 वे स्ट्रैटेजी है. पेरेंट भी इन्वॉल्व है, बच्चा भी इन्वॉल्व है. दोनों को पॉज करना है, दोनों को रिफ्लेक्ट करना है और फिर एक्ट करना है. बट बच्चों में अगर हम माइंडफुलनेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एज पेरेंट्स, सो हाउ शुड वी बिगिन, हाउ कैन वी डू दैट? See, mindfulness is something तो चाइल्ड में आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी. चिल्ड्रन आर बोर्न माइंडफुल. माइंडफुलनेस क्या है? इट इज बीइंग इन द प्रेजेंट. इट इज बीइंग इन सिंक विद योर इमोशंस, बीइंग इन सिंक विद एवरीथिंग. और ये जो एडल्ट्स में है ना, उसमें 3 थिंग्स चलती हैं. यू स्टार्ट विद अ थॉट. अगर हम देखें तो पहले हमारे पास एक विचार आता है कि एज एडल्ट सपोज द चाइल्ड इज हैप्पी, वी से ओके नाउ आई थिंक आई नीड टू गेट समथिंग. उसकी हैप्पीनेस कैसे एनहांस करूं. फिर वी फील, उसके बाद इमोशन होता है एंड देन वी डू द बिहेवियर. अब इंस्टेड ऑफ वी सेइंग कि मैं उसकी हैप्पीनेस कैसे एनहांस करूं, इट्स ऑलवेज वी थिंक हमें देना ही हमारा ड्यूटी है. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई डोंट वी मेक इट अ जर्नी, क्योंकि वो माइंडफुल ऑलरेडी है. द चाइल्ड, जब माइंडफुलनेस मीन्स यू आर नॉट द पास्ट, 2 कल के बीच में आप नहीं, आप आज में हो. माइंडफुलनेस का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आप पास्ट मेमोरीज आपका टुडे नहीं रुइन कर रहे और फ्यूचर का डर आपका आज नहीं दिखा रहे. और बच्चों के साथ क्या होता है, हम यही करते हैं. अगर हमने बच्चे को ये नहीं सिखाया तो आगे चल के क्या होगा. अगर इसने आज ये IIT नहीं करा तो आगे चल के नहीं बने. अरे इतने सारे जॉब्स हैं जो हमने सोचा ही नहीं था 5 साल पहले होंगे. तो हम भी रिलैक्स नहीं हो रहे क्योंकि हमारा पास्ट और फ्यूचर हमें डरा रहा है. देयर इज सो मच एंजाइटी रिगार्डिंग एंड फियर, एंड पास्ट में इतना पेन कि हमको ये था, हमने ऐसे सीखा, इसलिए हमें लगता है कि हमने तो 2 थप्पड़ खा लिए और हम तो ठीक थे. टीचर ने हमारे को इतना मारती थी स्केल पे. आई यूज्ड टू लर्न म्यूजिक, आई वाज इन अ कॉन्वेंट. एक नोट पियानो करते थे तो एक नोट रॉन्ग होता था. आई वाज इन फ्रॉम 3rd to 11th आई, तो वो एक स्केल पढ़ता था. ठीक है, आई लर्न, मतलब बट somehow we came out without any scars, but sometimes the scars are there. अगर मैं याद कर रही हूँ म्यूजिक में, आई शुड रिमेम्बर कि मैंने कितनी म्यूजिक मेलोडीज याद करी, लेकिन मुझे याद क्या आ रहा है, अरे वो पढ़ता था हमें स्केल. This is the tragedy of what happens. Things of negative reinforcement, of punishment, and we need to give them good memories, क्योंकि जब adults होंगे तो पीछे का याद करके they should be happy, not sad. बर्डन नहीं फील करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल मैम. वैसे हम क्वेश्चंस बाद में लेंगे, बट एक पेरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी रेलेवेंट टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. यू वर सेइंग बच्चे आजकल हम सिखा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, बच्चे बहुत स्टबर्न हो जा रहे हैं. दे आर वेरी स्टबर्न टू लिसन. तो ऐसे में क्या करें पेरेंट? See, ऐसे में if the child is not listening, I will want to understand why. वो आपका ही नहीं सुनता है या किसी का नहीं सुनता है, एक पैटर्न हो जाता है. तो अब सडनली चेंज नहीं होगा. he has to see कि you have changed, he will change या she will change, but we have to, आप अभी से शुरू कर दो. you can just go to him and say okay, मैंने सेशन अटेंड करा, मुझे लगा है या मैंने नई चीज करी है, एंड ठीक है मैंने पीछे आपको नहीं वो दिया है, बट आई वांट टू मेक अ न्यू बिगिनिंग. ईगो से कभी कुछ नहीं होगा. वी हैव टू ड्रॉप द ईगो एंड देन मूव विद द, बिकॉज है तो वो आप ही का, एंड पूरा चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी. सो स्टबर्न हो रहा है, रिबेलियन हो रहा है, टेक इट इन स्ट्राइड, कोई बात नहीं.
बच्चा घूम फिर के आप ही के पास आएगा. हैव दैट फेथ इन योर पेरेंटिंग. जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में भी एक रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने यही बोला कि अगर हम माइंडफुल पेरेंटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव इमोशंस, जैसे मैंने बोला कि हम लेस डिस्प्ले करेंगे, बट अपने बच्चों के साथ when we are conversing with our children तो शेयर्ड पॉजिटिव इमोशन बहुत इंक्रीज हो जाता है. एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम कॉन्वर्जेशन में बिल्कुल पॉजिटिवनेस ला सकते हैं, क्लैरिटी ला सकते हैं, ओपननेस ला सकते हैं, दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आल्सो. See, whatever has to be communicated, you can make it simple. You know, you can, but tell the child. ये जो कोविड टाइम्स है ना, fear है, discuss the fear with the child. Tell them कि yes, it is difficult, but see, people are getting okay. This is happening. क्योंकि छोटा बच्चा है, वो तो बहुत, उसको तो खाली अगर हम न्यूज ही ले रहे हैं वो तो डरा हुआ होगा ना. और चिल्ड्रन जो छोटे होते हैं वो, उनके पास वर्ड्स नहीं होते, वो आपको बताएंगे नहीं मुझे एंजाइटी हो रही है, लाइक एन एडल्ट. उनका बिहेवियर में जाएगा, गुस्सा करेंगे, बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, ज्यादा खाएंगे या ये फेंकेंगे, इमोशनल टेंट्रम्स होंगे. दैट मीन्स द चाइल्ड इज डीलिंग विद द फीलिंग एंशियस एंड नॉट कंफर्टेबल. जो एडोलेसेंट्स, जो टीनेजर्स हैं, वो तो आपको बता ही देंगे, वो भी रिबेल. टीनेज में तो वैसे भी हम रिबेल करते हैं, और यहाँ पे तो जब हम एक साथ हैं और आप देख रहे हो, बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चा सुबह उठता ही नहीं है, और हम चाहते हैं वो 7 बजे उठे और 9 बजे सो जाए, 10 बजे सो जाए, और बच्चा रात को. फिर वी हैव टू थिंक दैट कि ये हमारी कंडीशनिंग है ना, कि 6 बजे उठेंगे, क्या फर्क पड़ेगा अगर बच्चा देर से उठे, एज लॉन्ग एज टास्क सारे, क्लासेस नहीं मिस कर रहा है, इंश्योर दैट. ठीक है, उसको कहो ओके 2 days. वो कहता है अगर मेरी 2 दिन 9 बजे 8 बजे क्लास है तो मैं उठ तो रहा हूँ. तो आपको ये देखना है कि हमें टास्क कंप्लीट होना चाहिए. स्टाइल हमारा नहीं हो तो कोई बात नहीं, उतनी स्पेस दे, यू नो. हम इसी पे अटक जाते हैं. नहीं, जब मैं कह रही हूँ कि एवरी डे यू हैव टू गेट अप एट 7 o'clock और जॉगिंग करो, पहले मोटे हो रहे हो या पतले हो रहे हो, ये सब चीजें उभर के इस टाइम आ रही है कि हमें इतनी चीजें हमारे खुद की कंडीशनिंग है. सो दैट इज व्हाई आई सेड वी नीड टू स्टार्ट विद द मिरर, मैन इन द मिरर, वुमन इन द मिरर. नहीं, मैंने पढ़ा था मैम कि कोविड इज ब्रिंगिंग आउट द वर्स्ट इन ऑल ऑफ अस because we are staying together. Everybody is so much together कि हम जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड एक्चुअली उससे वर्स्ट सिनेरियो बनता जा रहा है. तो इसमें तो ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा इग्नोर करें, थोड़ा सा वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. यस, बिकॉज ना ओवर क्राउडिंग हो गई है, टू मच ऑफ वी टाइम हो गया. इसके लिए यू हैव टू गिव एवरीबडी स्पेस, और खुद भी लेनी जरूरी है एज पेरेंट. यू नीड दैट स्पेस. मी टाइम चाहिए. मी टाइम का मतलब ये नहीं आप एक कमरा बंद करके करो, सब अपनी अपनी एक्टिविटी करो, बट मी टाइम, इफ यू डोंट हैव दैट स्पेस, अगर आपके पास है तो आधा 1 घंटा अपना टाइम, मतलब अपना टाइम, चाहे आपके पास जो भी छोटा बच्चा भी है उसको भी अपना दे दीजिए. टॉडलर भी अपना खेल सकता है. जो साइलेंस होता है ना, जब आप साइलेंस में होगे आपका बच्चा भी साइलेंस में होगा. स्पेशली टॉडलर्स एंड जिनका वर्बल कम्युनिकेशन उस टाइम नहीं है. एडल्ट्स की अलग, टीनेजर्स का अलग है, बट यू टेल देम. टीनेजर्स के साथ तो वो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग टाइप के ही हो जाते हैं, दे आर नॉट. तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि दिस इज, यू टेक योर मी टाइम. सब अपना मी टाइम डिसाइड कर लो एंड डू इट, डू थिंग्स. क्योंकि ओवर क्राउडेडनेस इज ऑल्सो वेरी वेरी हार्मफुल, वेर यू फील you're like, it's like saying कि I'm in a public, I'm in on a stage all the time. तो हम जजमेंटल भी बहुत हैं. अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस बेसिक्स पे आ जाते हैं. अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल. I think those are really, ma'am, the key things that lead to wonderful relationships within the family and outside the family both. But ma'am, ये सब जो चीजें हो रही हैं, हो रही है, सब कुछ है, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करोगे कि एज अ फैमिली हम माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कम्युनिकेशन और कनेक्शन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि वो बेटर हो? बिकॉज इट्स नॉट ओनली चिल्ड्रन, it's also the parents who are living with parents, they also complain कि हम तो कर लेते हैं, पेरेंट्स जो है वो बच्चे को ना बिगाड़ रहे हैं. वो लोग जो है बच्चे को कहते हैं कि रुलाना नहीं है, या बच्चा जो कर रहा है उसको करने दो. तो ऐसे में हाउ these things can be tackled?
एक चीज है, जो पहले के जो पुराने बायसेस हैं उसको, प्री कंसीव नोशंस को जाने दें। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को लगता है कि हमने ऐसा नहीं ब्रिंग अप करा है, तो आप हंस के भी उनको कह सकते हो कि देखो आपका एग्जाम्पल तो हम ही बैठे हैं। सो वी नीड टू, देखिए, हैव फेथ इन योरसेल्फ, क्योंकि अगर हमारे इंटेंशन सही है, राइट, अगर हमारे इंटेंशन सही है, एंड इफ वी लव एंड वी जेन्युइनली लव एंड वी जेन्युइनली रिस्पेक्ट आवर चाइल्ड, नथिंग दैट वी डू विल बी रॉन्ग। उसको उसका टाइम भी देंगे तो कभी गलत नहीं हो सकता। There have, if you take the stories of some of the best moments of children when as adults, when we remember, बारिश में खेलना, वो छोटी छोटी नाव बनाना जब पानी में हो जाता है, so that in itself is, nothing goes waste. Brain 24/7 प्रोसेस करती है और ब्रेन को सब चीजें चाहिए। And what happens is, if you teach your children, if you teach them love, you cannot teach them love. You have to be the love. Yeah. अगर कुछ, because children learn from you, and if you do anything with love, compassion, it cannot go wrong. As long as there is love, compassion, kindness. And if you respect the other person, कितना भी छोटा हो बच्चा, if you give them that, you respect that he is a living being. जैसे खलील जिब्रान ने कहा है कि your children are not your children, they are life's longing for itself, they are the future. You are, आप तो जरिया है, और आप ये देखिए कि if you are just a conduit to bring another life into this world, and this is a miracle. Yeah? and then the whole story starts, like you said, but in itself you've already done such a wonderful thing. And I'll tell you, most mothers feel, अगर जब तक ये बहुत आपने trauma या कुछ negative नहीं हुआ, when your child is born, you feel that protection. Animals से लेके everybody feels that protection towards the child. एक आप अगर गाय का देख लीजिए, किसी का भी, वो आपको मार देंगे तो आपको क्या लगता है? ह्यूमन बीइंग्स नहीं करते, वी फील इट। जो हमारा एक अंदर जो होता है ना, इनकी हमारी कॉन्शियस और हमारा इनर सेल्फ, वो सब जानते हैं। एंड इफ यू डू समथिंग विद लव, आपका इंटेंशन करप्ट नहीं होना चाहिए। एंड इसी लव के साथ मैम मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि घर में पेरेंट्स, जैसे कई लोगों को लगता है कि अलग जा रहे हैं, तो आई थिंक इफ वी मेक देम अ टीम, if we include them in the objective of bringing the best to a child, definitely they cooperate. वहीं पे मैम फिर वापस मेरी वही बात आ जाती है कि कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। अगर Yes. हम ओपनली टॉक आउट करें, why do we want them to behave in a certain manner or respond in a certain manner, I think each parent would accept, क्योंकि बात तो वही है जैसे आपने कहा, be the love. If we are the love, I think we can tune in everybody to what we are thinking and what we are feeling. Absolutely. बट मेनी टाइम्स ना, हम लोगों के पास इतनी चीजें हैं, इतना कॉम्प्लिकेशन है कि हम कर नहीं पाते। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू थिंक, सिट बैक। जब हमें लग रहा है कि आई एम लूजिंग, वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक एज अ पेरेंट, एंड यू नो, स्टेप बैक मतलब थोड़ा सा मेंटली स्टेप बैक, काम योरसेल्फ डाउन, और जो होता है थोड़ा सा प्राणायाम या माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं, कई सारी ब्रीदिंग टेक्निक है, काम योरसेल्फ डाउन, टेक योर, लिसन टू गुड म्यूजिक, या अगर आपको डांस है या कोई आपको पेंटिंग आपकी हॉबी है, डू दैट फॉर हाफ एन आवर, जितना भी 15 मिनट्स आपके पास जो भी टाइम, then come back and deal with the situation. This is how you are taking, even like you tell the child, if the child is, if your teenager is going, you know, या आपका बहुत ज्यादा argument, then both of you take time out, you tell the child, okay, you also think, I'll also think, let's come back to the table. We will not walk out. Communication, no, जो आपने कहा, communication, respond to each other, not react to each other. और इसमें मैम मुझे लगता है कि जो मैंने, I was just seeing a program somewhere where they said grandparents are a very beautiful resource if you want your children to learn things, if you want to have, you know, confidence in themselves and open communication, the way they tell stories or they talk to your children, I think it really leads to a very beautiful mental development and, you know, mental health. So I think we should encourage children to have that bonding and that connect with our you know, their grandparents are now parents at home. We should utilize that resource.
can we, there is one question which I want to take. जी. Grandparents abusive words they teach to a special child who doesn't know the difference, and don't worry, it doesn't matter. जो अगर हम, because your child है, the child is, even if the child uses abusive words, he doesn't, the intention is not to abuse, and you have to tell the grandparents there. And if you cannot, then don't get, if you tell, you substitute that word with something else. जो है, आप, you please, or, and I think you need to talk to the grandparents. And also talk to the child openly. Yeah. Yeah, they, out of love and because of the way they have been groomed, their experiences are, तो उनका अलग perspective है, हमारा अलग है, but this is what is appropriate. I think that distinction between what is right and what is wrong is the most important thing that we need to teach to the children. And it doesn't matter, language बहुत छोटी चीज है. Don't, it doesn't, it is not important at all. ठीक है, हमें सिखाना है what are the good words, लेकिन इस पे stress मत करिए. Don't stress it out. Let it be, वो भूल भी जाएगा, और जब दूसरे words आएंगे वो छोड़ भी देगा. और it is true, communication gap है, क्योंकि communication gap ही हमें build करना है. Vinita, you will want to take more questions? Yes, you're right. We want to remain calm. Surroundings नहीं allow करते, तो इसके लिए एक ही चीज है कि आप अपने आप के पास take a moment, take a moment, sit with yourself. कहीं पे भी जाके, चाहे टॉयलेट में, calm yourself, breathing करके आ जाओ. आप ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं चेंज कर सकते. काउंसिल द चाइल्ड एंड और जो वर्ड्स है ना, कई बार गेम्स में, क्योंकि चाइल्ड इज विद स्पेशल नीड्स, जो भी है, अगर आप गेम में ही उस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, प्ले अ गेम, चेंज द वर्ड. आई थिंक यू कैन टीच थ्रू प्लेइंग ओनली, you can teach. You can't change the grandparents, leave the grandparents. Passive learning हमेशा मैम more effective होती है ना. Passively सिखाएं, actively ना सिखाएं. और उस पे ध्यान नहीं दें. देखिए कई बार क्या होता है ना, जैसे ही वो, it is also an attention seeking thing. क्योंकि बच्चा जैसे ही गाली देता है ना, छोटा बच्चा या कुछ भी, तो सबका ध्यान जाता है और हम कहते हैं you shouldn't be talking like that. तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको नेगेटिव reinforcement मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है लेकिन नेगेटिव. तो फिर वो वापस जब भी उसे अटेंशन चाहिए होगी, वो 2 बार बोलेगा. तो जस्ट इग्नोर व्हेन द चाइल्ड सेज दैट वर्ड. बिहेव लाइक आपने, ही इज टॉकिंग, जैसे वो एप्पल बोल रहा है वैसे ही वो बाकी चीजें बोल रहा है. और ये नेगेटिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर तो मैम बहुत ज्यादा कॉमनली आजकल यूज हो रहा है, बिकॉज वी एज पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ हमें टोकना है, कहाँ नहीं, कहाँ हमें अटेंशन देना है, कहाँ नहीं. सो आई थिंक इट द रिस्पांसिबिलिटी लाइज मोर ऑन द पेरेंट्स to reinforce the kind of behavior or the action that the child is doing. Absolutely. Questions मैम थोड़े से लेंगे कोई? हाँ प्लीज प्लीज, जो इम्पोर्टेंट है आप ले लीजिए, आप बता दीजिए. We'll take the question. मैम टिल द टाइम हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, एक पोल और कर ले हम. हाँ जरूर सर, प्लीज. So parents, I'm going to give you another poll, the last poll of the day, and let us see how do you respond in this. So the question in the last poll is, do you think that being a mindful parent will benefit your children? तो आपने को क्वेश्चन दे दो तो जल्दी से. Give me the question. And participants, if you have any questions, please write it on the chat box so that we can address your questions also. Hi. Hi. Vanita ma'am. Please switch off your audio. So ma'am, we are ending the poll. Yeah. For 57% of the people voted, 58, and everybody feels that being a mindful parent will benefit their children. I think that means that they have been listening very carefully
and they've had nice takeaways from today's session. So any questions, guys? We would like to address your questions also. मैम किसी ने क्वेश्चन दिया है, when I say let's play with kids, I get the answer I'm too tired, I need to rest. The kids hear all of this and feel only mama will play with us. When I say psychology impact होती है, I get the answer, ये bookish बातों का ज्ञान मत दो. So you know, because यही चीज है ना, हमें बोझ लगती है चीजें, प्री कंसीव नोशन के, बच्चे के साथ खेलना है, बच्चे को इस तरह, और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको करना है आप करिए, जो नहीं कर रहा है द पर्सन इज मिसिंग आउट, उसका लॉस है. अगर वो पेरेंट है और अगर उनको लगता है साइकोलॉजी नहीं होती है तो अब क्या करें. मैम एक पेरेंट ने बहुत अच्छा पूछा था, दे वांट कि हम इजी लैंग्वेज में ये समझा दें कि अनकंडीशनल का क्या मतलब है और टाइम आउट का क्या मतलब है. अनकंडीशनल मतलब बिना किसी कंडीशन के हम किसी को एक्सेप्ट या प्यार भी करें. ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. हम भी सब यही चाहते हैं ना कि कोई हमें, इसलिए अगर मैं आपको कहूँ मैं आपको इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, या आप अच्छे दिखते हो, या आपने ये हासिल करा, हमें नहीं अच्छा लगता ना. हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार इसलिए करें क्योंकि मैं, और ये अनकंडीशनल, या हम बिना किसी बायस के, बिना किसी जजमेंट के, या हम दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं एज एन एडल्ट ऑल्सो. जब हम प्यार करते हैं किसी को तो प्यार की ना कोई सीमा हो, ना परिभाषा हो. हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें. इसलिए नहीं हमें पसंद करें कि चलो मैं यहाँ काम करता हूँ या मेरे पास इतना पैसा है, ये है. तो बच्चे के लिए भी वही है, जो हम चाहते हैं वही हमें बच्चे को देना पड़ेगा. अनकंडीशनल एक्सेप्ट, अनकंडीशनल लव. और दूसरा क्या था विनीता, इन्होंने पूछा है कि सिंपल और टाइम आउट. टाइम आउट का मतलब है कि जैसे अगर सपोज आपको कुछ लग रहा है कि आई एम गेटिंग वेरी इरिटेटेड और शायद मैं इस पे रिएक्ट करूंगा, रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, तो उसका मतलब टाइम आउट का मतलब होता है. देखिए एंगर की एक साइकिल होती है. आपका पहले थॉट आता है कि ये तो चीज ठीक नहीं है, फिर उसका इमोशन आएगा कि मुझे इस पे गुस्सा करना है, और आपका बिहेवियर आता है. तो अगर हम उसमें गैप दे दें, एंगर की एक साइकिल है, अगर आप उसे, जो हम कहते थे ना 10, 8, 9 वो गिने, तो अगर आप एंगर पे इमीडिएट रिएक्शन करेंगे ना, पहला थप्पड़ में आप टाइम लेते हैं, दूसरा थप्पड़ तो इमीडिएटली आ जाता है. एंगर गिव्स राइज टू मोर एंगर. सो टाइम आउट का मतलब ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा समय दें काम होने के लिए, जिससे आपकी बॉडी, आपके थॉट्स और आपके इमोशन टूट जाए. जो एक गुस्से की साइकिल बन रही है, या एक इरिटेशन की साइकिल बन रही है, या डिप्रेशन की बन रही है, वो टूट जाए. और टाइम आउट कैसे भी हो सकता है. आप घर में अगर बंद हैं, जाके आप 5 मिनट के लिए स्पॉट जॉगिंग कर लीजिए, जाके कुछ अच्छा सा एक सॉन्ग सुन लीजिए, तो वो जो आपका एक बहुत मतलब एकदम फुल फोर्स में जो एक इमोशन आ रहा था ना, जिसमें आप एकदम रिएक्ट कर रहे थे, वो टूट जाएगा. बच्चे के लिए टाइम आउट है जब बच्चा बहुत ज्यादा सुन नहीं रहा होता है या कुछ है, हम कहते हैं ओके सिट, अपने आप को काम करो एंड देन कम बैक. दैट्स इट. और इसमें मैम आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि आजकल एक नई चीज, क्योंकि हम माइंडफुलनेस पे बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस के हिसाब से चीजें शुरू हुई है. देयर इज अ स्कूल इन वेस्ट बाल्टीमोर, वहां पे जब भी बच्चों को डिटेंशन देना होता है तो इंस्टेड ऑफ पनिशिंग दे गो टू अ माइंडफुलनेस रूम where Exactly. they are made to meditate, they are made to sit quietly, reflect on what they did, they are made to talk about it. And when they do this, the school reported that children's behavior went down, wrong Yes. behavior went down, they were more cooperative, and they were better managed. And in Yes. fact, meditation is something that is वंडरफुल. देखिए एक क्वेश्चन ये आया है कि अगर चाइल्ड कुछ करता है रॉन्ग और स्केर्ड है, तो एंड यू गेट टू नो, आपको ये इसमें ना, अगर इस एग्जांपल से मैं पढ़ दूं क्वेश्चन विनीता. माय क्वेश्चन इज दैट इफ अ चाइल्ड डज समथिंग रॉन्ग and is scared to tell their parents, and parents get to know it from a third person,
So in this case, is it okay to stop making the child do all the activities, whatever he or she is doing, and making them disconnect with the other people? इसमें ना दो चीजें हैं ओजस्वी जी. एक तो ये है कि आपको एक बार एज पेरेंट्स आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों बच्चा डर रहा है हमसे कहने के लिए. और दूसरी चीज ये है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी चीज ये है, इट कैन बी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट फियर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्पेक्ट हम करते हैं लेकिन फियर भी है. तो यही मैं बात कह रही हूँ कि एज पेरेंट्स हमने बच्चे को उतना वो नहीं करा कि वो बच्चा कि वो अगर गलती भी करे तो वो हमारे पास आ जाए. वी नीड टू ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन इन सच अ वे कि वो गलती भी करे तो हमारे पास ही आए. और अभी जो भी है, अगर आप इसमें उस बच्चे को वो करने से रोकेंगे, आप रोकिए मत. सी, ये हम अगेन वी कम बैक टू दैट थिंग कि बच्चे को डिसिप्लिन करना है ना, सो दैट. और अगर आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट से बच्चा डिसिप्लिन उतनी इफेक्टिवली नहीं होता है, उस टाइम के लिए वो काम नहीं करेगा. लेकिन जब आप फियर हट जाएगा तो वो वही काम करेगा. तो सिट विद योर चाइल्ड, टॉक इट आउट, कम्युनिकेट, आस्क हिम कि क्या चीज थी बेटा कि यू डिड नॉट टेल मी. गलती तो सभी से होती है, रॉन्ग नहीं होता है. दीज आर मिस्टेक्स. वी हैव टू, हम अपने जो हमारे वर्ड्स हैं ना और थॉट्स हैं उसको चेंज करेंगे तो छोटी छोटी चीजें तो हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा. जैसे देयर इज नथिंग रॉन्ग, द चाइल्ड मेड अ मिस्टेक एंड वी एज पेरेंट्स हैव टू सी हाउ वी कैन हेल्प हिम अंडरस्टैंड कि मिस्टेक्स और मिस्टेक्स से लर्निंग लेके कैसे आगे बढ़े. एंड दिस यू विल हैव टू टॉक टू द चाइल्ड. और थोड़ा सा मैम इंटरनलाइज पेरेंट को करना पड़ेगा कि अगर बच्चे ने कुछ किया बिहेवियर, तो क्या एंटीसीडेंट था, क्यों किया, किस वजह से बिहेवियर किया, और फिर उसके बाद कैसे हमने रिस्पॉन्ड किया या कैसे बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया. तो हम वैल्यूएशन शायद करना मिस आउट कर देते हैं. देखिए, यू हैव टू, इफ यू हैव टू ट्रेन योर चाइल्ड फॉर नॉट हाइडिंग एंड लाइंग. लाइंग इज अनकॉन्शियस. लाइंग मतलब बच्चा अनकॉन्शियस नहीं है. लाइंग सबसे इजी है क्योंकि उसको डर रहता है कि हम हर चीज पे डांटेंगे. तो आपको इसके लिए खुद भी इट इज, कई चीजें तो हाँ बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं, हर जगह देखते हैं. सो वी आर नॉट वेरी ऑनेस्ट पीपल ऑल द टाइम, बट वी हैव टू टॉक अबाउट इट. एंड आप बच्चे को पूछिए, अगर जो कुछ चीज छुपा रहा है आप उसको कहिए यू कम एंड टेल मी. अगर वो, आप देखिए रीइंफोर्स कैसे करेंगे कि वो आपको सब चीजें बताए. आप कहिए अगर कोई गलती भी करिए ना, बदमाशी, अगर मुझे बताओगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं बताओगे then I will not like it. So the child, encourage the child. एक तरफ आप पॉजिटिव इंकरेजमेंट, रीइंफोर्समेंट दीजिए कि बच्चा करे. और ये मैं आज विनीता, आई वांट टू ऐड दिस थिंग कि प्लीज इंश्योर कि आपका बच्चा आपको आके सब बताए, क्योंकि इतने सारे केसेस ऐसे हैं कि बच्चे बिकॉज ऑफ द मीडिया कई चीजें ऐसी होती हैं, एंड बच्चे भी यहाँ पे हैं. प्लीज डोंट ट्रस्ट एनीबडी ऑन द सोशल मीडिया टू दैट एक्सटेंट. आप अपनी फोटो भेजे, कुछ भी भेजे, और बच्चे भी कई बार भेज देते हैं, गलती हो गई तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाइए. ज्यादा से ज्यादा वो आपको एक थप्पड़ मारेंगे, लेकिन उनसे ज्यादा आपके लिए कंसर्न कोई नहीं होगा. सम थिंग्स, गलती करें पेरेंट्स के पास जाए, और पेरेंट्स को भी यू शुड बी एबल टू इनकलकेट दैट थिंग इन योर चाइल्ड. आप उसको इतना स्पेस, उसको इतनी सेफ स्पेस दें कि वो आपके पास ही आए. तो वो तभी होगा मैम जब पेरेंट्स नॉन जजमेंटल होंगे. और कई चीजें हैं ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन, या नॉन जजमेंटल, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया. सॉरी विनीता, मैंने आज शायद आपको काट दिया, वो वॉइस कट रही थी. पीयर वैलिडेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. एक एज होती है जहाँ पे पीयर वैलिडेशन इज इम्पोर्टेंट, बट इट कुड बी डेंजरस. यू शुड, दैट्स व्हाई एक ना थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना, एक हिडन गेटवे होता है, एक चोर दरवाजा होता है. तो पेरेंट्स को एक चोर दरवाजा अपने बच्चे के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए कि बच्चा आपके पास आ जाए. चाहे कई बार हमें चीजें अनकंफर्टेबल लगेंगी, लेकिन गिव दैट स्पेस कि बच्चा कुछ भी आपको बोल दे, आप रिएक्ट नहीं करिए, रिस्पॉन्ड करिए. क्योंकि हम ना एकदम से पेरेंट बन जाते हैं, राइट और रॉन्ग. नॉन जजमेंटल, अनकंडीशनल, डू दैट. यस विनीता, सॉरी मैम, यही मैं कह रही थी कि नॉन जजमेंटल अगर हम होंगे तो वी विल गिव दैट स्पेस ऑटोमेटिकली. बच्चों को वो ट्रस्ट आएगा दैट दे कैन कम एंड बी ओपन टू अस.
But Yes. yes, एक और बात मैम, which I used to do when my children were small, I always tell the parents to do that is कि ये चीजें हमें बचपन से ही शुरू करनी है. And you know, a Absolutely. very small thing that I used to do it when my children were in play school. When they used to come, I used to tell them, you have to tell me just 3 things that happened. और चाहे वो 3 थिंग्स मैम ये होती थी कि जी हमने मैम आई थी क्लास में, हमने लंच किया, हम सुसु करने गए. I used to be happy with that. I used to appreciate them for that also. And you know, with that training, what eventually happened was the moment they used to come back from school, until and unless they vomited out everything that happened the whole day, they were not satisfied. And till today, that is the case. जहां पे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं ना, अरे खाना नहीं, ये बताओ उसने क्या कहा, वो नहीं, ये बताओ फिर तुमने क्या कहा, जहां हम उनके आंसर्स को काट करके वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग सो मच, मुझे लगता है वहां हम गलत हो जाते हैं. सो वी हैव टू गिव दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू देम एंड आल्सो अप्रिशिएट देम फॉर शेयरिंग व्हाटएवर दे आर शेयरिंग. Yes. दैट्स द Non-judgment. beginning. Absolutely. You have to accept your child for whatever, like you want to be accepted. Yes, yes, yes. That is the most important thing, I think. Ki accept your child as he or she is and give the child that freedom. वो मैम दलाई लामा वाला वो कितना beautiful quote है, that give them, you know, wings to fly and roots to stay back and roots to grow. That is so beautiful कि हमें opportunities देनी है to experiment and explore and grow bigger. But yes, value system we have to provide, those kind of, you know, trustworthy feelings that we have to provide, that they are there with us always. So दोनों चीजें parallelly we have to be focusing on when we are parenting a child. है ना. तो मैम एक सीक्रेट बिफोर वी रियली वाइंड अप द सेशन, वी आर सो हैप्पी देयर वर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, इज कि वो छोटी सी सीक्रेट है तो मैं शेयर करती हूँ कि भैया पेरेंटिंग, चाहे हमने कितना भी माइंडफुलनेस पे भी बात करी, पेरेंटिंग से सिर्फ सनशाइन और स्माइल्स नहीं आने वाली हैं. पेरेंट्स शुड नॉट एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा वो खाना शुरू कर देगा जो मैं उसको चाहती हूँ कि वो खाए डिनर टेबल पे. इट विल नॉट हैपन. लेकिन हाँ ये होगा व्हेन यू आर डीलिंग विद योर चाइल्ड, तो आपका पास्ट या आपका फ्यूचर एक्सपीरियंस जो है उससे आपका प्रेजेंट जो है वो कलर नहीं होगा, आपका रिएक्शन इम्पैक्ट नहीं होगा. आप अभी भी गुस्से में बोलोगे, आप अभी भी फ्रस्ट्रेट हो के बोलोगे, बट इट विल बी फ्रॉम अ मोर इन्फॉर्म्ड प्लेस. इफ यू आर माइंडफुल, इट विल बी फ्रॉम अ इन्फॉर्म्ड प्लेस और प्योरली ऑटोमेटिक रिएक्शन आएगा. अगर आप थोड़ा सा पॉज देके थोड़ा सोच के बोलोगे. एंड मैम इसमें बहुत ब्यूटीफुली ना हार्वर्ड ने 3 स्टेप्स बोले दैट आई वुड लाइक टू वाइंड अप विद. एंड वो 3 स्टेप्स वो बोलते हैं, दे आउटस्मार्ट योर ब्रेन एंड यू विल हैव अ लेजर फोकस विद दैट. एंड व्हाट दे से इज एन एबीसी स्ट्रेटजी अगेन इन दैट. एबीसी में उन्होंने बोला एक छोटी सी ट्रिक है, हार्वर्ड वाले कहते हैं कि ए इज कि आप जब बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स. A is be aware, be present in the moment. जैसे मैम ने पूरे टाइम आपको सबसे ज्यादा ये बताया है, be there, be aware, be with your child. So A is aware of your options, aware of whatever is happening around you. B is breathe deeply. मैम ने भी ये सजेस्ट किया था कि आप डीप ब्रीदिंग करें. आप, मुझे लगता है कई बार सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होकर थोड़ा सा ब्रीथ कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाता है. यू काम डाउन. जैसे हम एंगर मैनेजमेंट में मैम बोलते हैं कि हैव अ सिप ऑफ वाटर. इट रियली वर्क्स. It really works. So pause, breathe, and then C is choose your option wisely and continue your task. तो आपको गुस्सा तब आया था, लेकिन गुस्सा आने पे अगर आप अवेयर हो जाओ कि गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किस वजह से ऐसा कर रहा है, आप थोड़ा सा सोचोगे, 1 मिनट दोगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ब्रीथ करोगे एंड थर्ड टाइम व्हेन यू रिएक्ट, यू विल सी दैट योर रिएक्शंस वुड बी very different. So ABC trick was very, very beautiful that I found, and I thought I'll share with everybody. Otherwise, ma'am, the inputs were wonderful. It was a very brilliant session, and you know, your insights were, I think, really amazing, and parents would have had a wonderful takeaway from this. And I also have a feedback, parents, that you can fill. शायद वो thumbs up, thumbs down नहीं है. You can do it in the end. And ma'am, a lot of thanks for your time. And हमने stretch किया session क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे थे, सुनने का मन करे जा रहा था. So we had a wonderful time. Thank you from the core of my heart. Thank you so much and wonderful, Vinita. Very good.
Thank you, Very ma'am. nice. And thank you to everybody who. Yeah, we had a wonderful list of participants, and we went up to 100. That is really nice, and I think that they will take away the message, real message that you spoke in the end, that you told in the end. And I have taken the most beautiful message as that: be the love. मुझे सबसे beautiful ma'am वही लगा. Be the love that you said. That if you are love, everything, that synergy will be spread, and we will be able to create a better world with that. And accept your children. एक last message जो आप बोलोगे मैम, conclude करोगे, then we are going to wind it up. So I will say that parenting is very difficult, but being a child is equally difficult. मैं अपनी I was always a rebel, but ये है कि you don't realize how weird you are till you have your own daughter who is doing whatever you were doing. Then you realize, oh my God, it was so weird. But on a serious note, I will say that there is only we are here, and अपने संस्कार पे हमें भरोसा होना चाहिए, and unconditional love, unconditional acceptance, and unconditional respect. उससे किसी का harm नहीं है. Mindfulness is just that, It means don't worry, the future will take care of itself. Past को जाने दो, or enjoy whatever is there with your child and you in the present. Thank you. Wonderful, ma'am. That was really nice. And parents, I hope you will start not expecting from your children. You will start being okay with what is not okay, and you will start implementing, these kind of small strategies like breathing, taking out time for yourself, taking time out for yourself, not only for your child. And these are really going to benefit you in your, bringing up process with your children. We wish you a very happy parenting. Be nice parents and give your children reasons to smile. Once they grow up, when they remember you, I think they should have a smile on their face. Thank you all so much. Thank you, Chavi ma'am. It was wonderful having you here. And thank you all the participants. Wonderful having you here. And the next session we are going to have on next Saturday. It is going to be on developmental screening, monitoring, and evaluation in children. So whoever is interested, I'll be sharing the link. You can join our that. Thank you so much. Wonderful having you all. Thank you. Thank you so much, ma'am. Bye-bye.